So, good evening, ladies and gentlemen. I, Dr. Shilpi Chauhan. Welcome to all our fourth day of a 1 week certification program on research and techniques. And first of all, I would like to welcome our speaker of the day, Professor Anupma Rajesh, Professor MIT International Business School. And welcome to our coordinate partner, Dr. Yadu Sharma ji, Dean Educational Principal, SS Jain Subodh TT College, Sanganer, Jaipur, Rajasthan. So today we will discuss about academic writing and publishing. So before inviting our speaker, I would like to introduce you, ma'am. Uh, Professor Madam is from MIT International Business School, Uttar Pradesh, India. Uh, Dr. Nupma Rajesh ji is professor at MIT International Business School, MIT University, India. Her qualifications includes PhD in the area of technology, in education, MPhil IT, MPhil MG MT, MEd, MSc IT, PGDCA, PGDBA. She has also been trained for case writing at INSEAD Paris. She has a teaching experience of about 24 years, including international assignments, which includes a teaching stint in London, Australia, France, Singapore, etc., as well as training of students of multiple nationalities. She has written more than 100 research papers and case studies for prestigious international journals and has 9 books and several books chapters to her credit. She is reviewer of renowned Sage and Emerald Journal. Her research interests are business intelligence, educational technology, marketing analytics, etc. While her teaching interests are business intelligence, e-commerce, IT-enabled process, and so on. She is an avid trainer and has trained Ministry of External Affairs, Union Bank of India, NHPC, ILFS, Tata Motors, Bhutan Power Company employees as well as Commonwealth Games, volunteers and army personals. She is a master trainer from Microsoft Infosys partner for business intelligence and academic partner for SAP ARM SIM. Professor Rajesh has been actively engaged in collaborative projects with various universities in the United Kingdom. Um, uh, Notably, she spearheaded a food waste and behavior change initiative aimed at addressing sustainability challenges. Additionally, she is leading a research-based project titled Advancing Healthcare Through Predictive Analysis, a machine learning approach focusing on leveraging predictive analytics to enhance healthcare outcomes with University of York. Furthermore, she participated in Global Responsibility Week at Nottingham Trent University, delivering a workshop titled Green IT, the Green Bottom Line, highlighting the importance of environmentally sustainable practices in the IT sector. These collaborations underscore her commitment to innovative research and international partnership for addressing contemporary societal issues. She has won several awards such as ADMA Research Award and had also been awarded several outstanding papers awards at prestigious conferences at institutes such as IIM Ahmedabad and by organizations such as Emerald International Journal of Emerging Markets. She also has a more to her credit. She also has a three patents and 5 copyrights in her name. So this is a very good introduction, ma'am, and I am feeling very proud to be inviting you as a speaker here. And before not taking too much time, I would like to take over the mic to you, ma'am. Please continue, ma'am. Thank you. Thank you. May God give me, capability of being capable of what you're reading so much. Thank you so much. अच्छा सबसे पहले
लैंग्वेज बताइए, मैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैम आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, अगर साइंटिफिकली जहाँ यूज़ हो वर्ड्स आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, जितना अच्छा हो सके आप हिंदी में कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों ही लैंग्वेज का है। तो मैं एक मिक्स लैंग्वेज आई विल टेक, जी जिसमें इंग्लिश को कर दूंगी, हिंदी कर दूंगी एंड सो ऑन। देखिए, इट डजंट मैटर कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ जाए। यस मैम। तो कभी भी आपको मेरे बारे में कुछ भी मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में ना आए तो आप मुझे प्लीज स्टॉप करिएगा, जस्ट आस्क मी। अ टीचर मस्ट हैव द पेशेंस ऑफ एन ओशन। तो आप मुझसे 100 बार 1000 बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तब भी मैं उसका आंसर देने में आई विल नॉट लूज माय पेशेंस। सो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी एनीवेयर, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। I have spent my life in research and this is something which interests me a lot. तो ये एक मैंने कुछ ट्रॉफी मैंने ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल लर्निंग। I have about 100, more than 110 papers and my age index is about 7. I've got all Q1 publications. तो वो सब ऐसे नहीं बना, उसको आपको धीरे 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 आई लर्न एज आई वेंट अलोंग। कोई भी इंसान अगर गलती करता है ना तो उससे सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि आप उसे सीख जाओ। तो मैं गलतियां कर करके सीखी और मेरे भी बहुत रिजेक्शंस हुए, मेरी पीएचडी। सो वंस आई डिड द हार्ड वे, अब मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से काफी सीख गई। तो मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि शायद किताबों में ना हो, शायद यूट्यूब में ना हो, वो सिंपल वो है जो मैं आई लर्न एज आई वेंट अलोंग। तो एकेडमिक राइटिंग एंड पब्लिशिंग थोड़ा सा वो है, रिज्यूम बन गया। एक मिनट, मैं एंड में हूँ। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए ओके वी कम टू द बिगिनिंग अगेन। ठीक, और मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एनी रिसर्च इज कि उसका टाइटल कैसा हो, क्योंकि कई बार आप टेक्स्ट रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका टाइटल ही गलत होता है या टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपका मन नहीं होता वो पढ़ने का या किसी का भी उसको पब्लिश करने का। तो टाइटल में सबसे पहले तो आपके जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि सैलरी मोटिवेशन को इफेक्ट करती है, पहली बात तो वेरिएबल्स उस टाइटल में होने चाहिए। फिर आप किस ग्रुप पे ये स्टडी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल सैलरी एंड मोटिवेशन इन नर्सरी टीचर्स। फिर कहाँ कर रहे हैं, सैलरी एंड मोटिवेशन इन नर्सरी टीचर्स इन दिल्ली एनसीआर एरिया। और फिर आप कैसे करेंगे, so you are going to use a randomized approach, you're going to use any kind of, so you will give a little bit about the research design. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, तो सबसे पहले क्या चीज हुई, इफेक्ट्स ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, तो ये दूसरी चीज हुई, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो आपका पहले दो वेरिएबल्स क्या हुए, इफेक्ट्स और ड्रगिंग। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आपकी प्रेजेंटेशन मूव नहीं कर रही है। आपको दूसरी वाली में दिख रहा है जो टाइटल लिखा हुआ है, जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है वो मूव नहीं कर रही है, उसमें ओनली टाइटल आ रहा है। ये टाइटल के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो दिख रहा है? नहीं 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 मैम, फर्स्ट जो कवर पेज है वही आया हुआ है, आपका नाम है और टॉपिक का है। अच्छा, क्या आपको अब दिख रहा है क्या? नो चेंज हुआ? नो मैम, नो मैम। ये सबके लिए है? यस मैम।
जो प्रेजेंटेशन आपने शेयर स्टार्टिंग में किया हुआ था ना, फर्स्ट पेज लगा हुआ है, वही आ रहा है, मूव नहीं हो रहा है। या फाइल आपने दूसरी ओपन की है, वो शायद वो वाली शेयर नहीं हुई है। क्या आपको अभी क्या दिख रहा है? मैम फर्स्ट पेज ही है, एकेडमिक राइटिंग एंड पब्लिशिंग, नीचे आपका नाम है। और अब जैसे ही चेंज हो बताइएगा, मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं मैम, नहीं चेंज हुआ है। एक बार मैं स्टॉक प्रेजेंट करके फिर से ट्राई। यस मैम, दैट वुड बी बेटर। क्या अब आपको दिख रहा है? अभी तो प्रेजेंट नहीं हुई मैम, अब प्रेजेंट हुआ है। यस, अभी फर्स्ट पेज है आपका, कवर पेज। यस, आप रिसर्च टाइटल वाया अब आया है, व्हाट वर्ड्स, वो वर्ड्स। हाँ, यस, यही मैं अभी समझा रही हाँ अभी हूँ, ये है आया है। यस, ओके, थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। ना? ओके। तो यही हम बात कर रहे थे कि आप, अच्छा अभी चेंज तो कुछ नहीं हुआ? अगर अब मैं मूव कर रही हूँ तो मूव कर रहा है ना? प्लीज प्लीज डू वंस, एक बार आप कीजिए चेंज। चेंज हुआ? टाइटल आ गया? यस, हाँ आ टाइट गया। जूम किया आपने। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि टाइटल कैसे लिखना चाहिए, ठीक? तो मैंने आपको बोला था ये वेरिएबल्स होने चाहिए, हु वर्ड्स, वेयर वर्ड्स, हाउ वर्ड्स, और इसका एग्जांपल मैं इसमें ले रही थी। तो अगर आप देखें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और ड्रग, ये दो वेरिएबल्स, और पेशेंट्स, तो आपने पॉपुलेशन बता दी, और आपने बाय मल्टी सेंटर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपने अपना मेथोडोलॉजी भी बता दी। इससे आपका टाइटल लंबा बना पर बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके चांसेस ऑफ पब्लिकेशन, इसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। अब मुझे ये समझ में आया कि मुझे मूव यहाँ करना पड़ेगा और वापस वहां जाना पड़ेगा, ठीक? अब आइए, कई बार हमें सिंपल थिंग एज एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें, ये शायद कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कभी भी एक पैरा, उसके और पैरा पैरा ब्रेक नहीं होता है, पैरा एक ही रहता है। पैरा, अब आप मैं मानूंगी कि कुड भी वो आपके अलग अलग जर्नल्स में अलग अलग बताया जाता है, तो पैरा कुड भी 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, वो उसकी हर जर्नल की अलग होती है, पर पैरा हमेशा एक ही रहता है। और बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में इसके 5 टुकड़े होते हैं। What the papers about? So the papers about studying motivation and salary. कुछ भी. Why is it important? Because a human being cannot, salary गिरना काम नहीं होता, या motivation की कुछ भी, जो भी दो लाइनें आपने literature review से establish ली है। आप how did he do it? A study was conducted, population में ये था वो था, बड़ा short में, और the key findings are आपके नेक्स्ट 2-3 लाइनें, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च हैज नो मीनिंग। ये फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत एट्रिशन है, आजकल लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, कंपनीज का काम है, सो व्हाटएवर अदर रीजंस फॉर यू डूइंग दैट रिसर्च। तो अगर आप एक बार अगर very simply, reason for writing, problem, methodology, results and implications. Implications दो तरीके के होते हैं। Implications, एक, आपने जो लिटरेचर रिव्यू करा है उससे थ्योरी आप कैसे बढ़ा रहे हैं। तो आपने कुछ एक थ्योरी पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी टीचर हूँ तो मेरे लिए टैम थ्योरी होती, तो क्या उस थ्योरी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, इस पर्टिकुलर से, फॉर एग्जांपल मैं नियो बैंक स्टडी कर रही हूँ, उससे दुनिया को, बैंकिंग को, बिजनेस को क्या फायदा होगा। तो 2 ways of implication. So those are very important. Research for the sake of research has no value. The research must be grounded in why is it important. Okay.
नेक्स्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, so again a brief introduction to the topic. Why is the topic important? What was the gap in the literature? आपने वो कैसे करा? Research methods, approach, और key findings. That's your abstract. 400 to 500 words. हर जर्नल अपना बताता है और सिर्फ एक पारा. The para doesn't break. ये one of those APA guidelines. तो ये मैंने आप ये खुद पढ़ लीजिएगा. एग्जाम्पल दिया है. General background, specific background, knowledge gap, results and meaning of the results. Meaning of the results meaning हमारी implications क्या है. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे, प्लीज़ फील फ्री टू स्टॉप मी. थोड़ा मैं हल्की स्पीड इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एंड तक, कंक्लूजन तक आपको पूरा एक बेस पाऊँ. ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपका आया एक की रिसर्च क्वेश्चन. आपकी पूरी एक व्हाट इन रिसर्च राइटिंग इज कॉल्ड अ फनल अप्रोच. तो आपने फनल देखा होगा कि ऊपर से बड़ा होता है और नीचे आके बिल्कुल छोटा हो जाता है. तो कोई भी रिसर्च और जो है वो आपकी एक फनल अप्रोच लेती है. आप एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर नियो बैंक्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. एक बड़ा क्वेश्चन बस. उसके बाद आप उसके नुआंसेस समझते हैं, आप उसको की ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करते हैं. तो सबसे पहले आपका एक रिसर्च क्वेश्चन होगा. तो रिसर्च क्वेश्चन, डज सैलरी हैव एन इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन ऑन, एक बस एक ब्रॉड सा एक एरिया जो आप पढ़ रहे हैं. डू चिल्ड्रन गेट स्पॉइल्ड बाय लव, बस एक ब्रॉड सा क्वेश्चन. उसके बाद आप उसको एक क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में, अपने क्वेश्चन डिजाइनिंग में, एटसेट्रा. तो लेट्स गो देयर. पहला आपका क्या हो गया कि आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपका पूरी थीसिस उस क्वेश्चन का आंसर हो. सो इसी में अब आप जब आप रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन कर लेते हैं तो अब आप यू नीड टू थिंक कि व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट. क्या ये इतना है कि कोई इंटरेस्टेड होगा? क्या ये कोई कॉमन इशू सॉल्व कर रहा है? क्योंकि आपकी रिसर्च का एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंस होना चाहिए. तो व्हाट बेनिफिट्स डज द रिसर्च प्रॉमिस? आपका ये रिसर्च क्वेश्चन ये सब क्वेश्चंस आंसर करना चाहिए, तभी आपकी थीसिस इट वुड बी वर्थ डूइंग. क्या ये आज की डेट में है, रेलेवेंट है? कोई ऐसी रिसर्च जिसकी वो रेलेवेंट ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं. Once your research question is done, then you come to the first part of your thesis, which is called the introduction. तो एक बड़ा सिंपल सा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कितने पेज हो. बहुत सिंपल, पेजों का कोई आंसर नहीं है. बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला जो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स टॉक अबाउट इज 10-30-30-30. 10% इंट्रोडक्शन, 30% आपका लिटरेचर रिव्यू एंड मेथोडोलॉजी, 30% आपका वो जो सारा जो एनालिसिस एक्सेट्रा, और 30% आपकी कंक्लूजन एक्सेट्रा, जहाँ पर आप वाइंड अप करके आप अपना सब प्रेजेंट करते हैं. सो अगर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर देखिए, दिस शुड बी अबाउट 10%. और सबसे सेकंड क्लास में आपका पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर शुड बी अबाउट द रैशनल और द नीड फॉर द स्टडी. ये स्टडी इंपॉर्टेंट है. स्कूटी चलने में वो Why are you बताती थी. और इस वाई को आंसर करने के लिए आप ये 4-5 चीजें करेंगे. सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. प्लीज ये आप बहुत सारे, मैं भी आधी रिसर्च कर गई थी और मैं फिर अपनी रिसर्च प्रेजेंट करने IIM में गई और मुझे समझ में आया कि मैंने तो शायद बेसिक ही नहीं सही कराई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जब मैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ तो मैं ये पॉइंट जरूर समझाती हूँ. ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? बहुत सारे कुछ ऑथर्स ने कुछ स्टडीज करी होती है और उस स्टडीज को जाकर अलग अलग कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया होता है. जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उनको उस प्रेजेंटेशन से लोगों में कॉन्वर्सेशन क्रिएट होता है और लोग उसी को, अगर वो बात अच्छी होती है तो और रिसर्च उसमें होने लग जाती है.
So for a simple reason, for example, the Maslow's theory. मास्लो ने जाके किसी जगह पे ये प्रेजेंट किया होगा, उसके बाद लोगों ने और करना शुरू कर दिया और उसके बाद it became a theory. तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता है जो इंसान एक कॉन्फिडेंस में लेके जाता है कि ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा हो रहा है, और फिर वो जब एस्टैब्लिश हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो उसको थ्योरी मान लिया जाता है और वो किताबों में थ्योरी बन के छप जाता है कि प्रूव हो गया कि हाँ ऐसा ही है, लाखों लोगों ने इसको साइट कर दिया है, तो इसे थोड़ा सा उधर कर, सब कुछ टेबल भी कर ले, तो हटा भाई, क्यों खेलने दे इस पे, इस तरह के पेपर्स टेबल देख गिर ना जा किनारे से, आपके एरिया के बेसिक पेपर्स हैं, उनको सेमिनल पेपर्स कहा जाता है, वो आप उससे आप थ्योरी ट्रेस करते हैं कि मास्लोस थ्योरी थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। एक तरीका तो ये होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का बनाने का, और अब यहाँ तक हम पहुँच गए बैक तो टू पहले बैक काम इतना था, सीरियल फिर लेके काम के बाद मुझे 3-4 बार उठाया, इतनी बढ़िया नींद से तुमने सुन नहीं दिया। आज हम न्यू बैंक्स की बात करते हैं। तो पहला तो आपका मम्मा देखो लंका चल रही, काइंड ऑफ हिस्टोरिकल देख बैकग्राउंड चढ़ना चाह रहा है इस पे, देख टांग कर रहा है, इसे करने दे तो इसे। इसे आप देखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। अरे इसके फिर चक्कर आप में उसको मैं फिर हिल अपनी जाऊंगा, ये अपनी पीछे स्टेटमेंट तक खेलता आपने जाता रिसर्च है, क्वेश्चन आपने बताया कि आप क्या एक्चुअली तू- स्टडी करने जा रहे हैं। पहले आपने उसकी जस्टिफिकेशन दी, रैशनल, ये इम्पोर्टेंट है क्यों है, अगर और फिर यहाँ उसने पे आपने खिसक हिस्ट्री ले, दी खिसका कि भाई ली, ये मेज ऐसे पकड़, लोगों ने मेज ये पढ़ा मेज था। यहाँ पूरा। उसके बाद आप जो है वो अपनी बेसिक हाइपोथेसिस, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने टर्म कहा, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मॉडल्स हैं, आप बेसिक अपने, जैसे या न्यू बैंक है तो न्यू बैंक का मतलब क्या है, आप इस तरह के बेसिक अपने टर्म्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखिए आप डेफिनेशन ऑफ टर्म्स लिखा है, और जैसे आपका इंट्रोडक्शन रैशनल से स्टार्ट हुआ था, आप बिल्कुल एंड में जो आपका लास्ट पैरा होता है, इट शुड वेरी क्लियरली डिफाइन, हेंस अब मैंने रैशनल भी बता दिया आपको हिस्ट्री भी बता दी, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी, हेंस the last para justifies, yes, the study is very important to do, and now we are going to go to the next phase, which is a literature. जिससे मैं हंसना एक भूल बिल्कुल ना कहानी की जाऊँ तरह चलना चाहिए आपका, there should not be a disjoint. जब आप लिखते हैं, देखिए मैं बहुत ओल्ड स्कूल, तो आजकल तो बहुत सारी राइटिंग टूल्स हैं, बहुत सारा फ्लैग इश्यूज होता है, मैं उन सब एथिकल कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊँगी, मैं आपको वो बिल्कुल उससे इधर तू बैठ, ओल्ड फैशन इधर बैठा, टेक्निक बैठ, राइटिंग बताऊं। उसका ध्यान रख, देखिए आप क्या करें क्या ना करें, बस पकड़ना नहीं है, इट्स नॉट रियली समथिंग जब गिरे तब संभालना भी तो छोड़ दो। बट राइटिंग में मैं भी लिखती हूँ, जो आई जस्ट टेक अ कॉल फॉर एग्जांपल, मैं भी लिखती हूँ, तो एक चीज होती है माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है कि पहले आप की वर्ड्स लिख लीजिए, मम्मा पापा ने हाथ में हर उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या क्या वर्ड्स लिखते हैं, उस पर्टिकुलर पेज में या उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप किस किस के बारे में लिखना चाहेंगे, उसके वर्ड्स लिख लीजिए, और फिर उस वर्ड को आप पैरा में कन्वर्ट करना शुरू करिए। जो आपका आखिरी वर्ड होता है, दैट शुड लीड टू द नेक्स्ट वर्ड of one para into another. अगर समझ में आ रहा है तो basically what I mean is that there should be a very clear map of when you're writing, जिससे logic, जिससे लॉजिकल, जैसे कई बार नहीं आपके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं कि इट इज नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर, ये सब इस तरह के लिख के वो भेज देते हैं, उनका मतलब ये है कि आपका जो फ्लो है राइटिंग का वो क्लियर नहीं है। तो एक पेज पे एक पैरा में आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा, एक नेक्स्ट पैरा में आपने दूसरे पे लिखा, तीसरे, तो वो पैरा सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, जहाँ एंड करे इट शुड लीड यू टू द नेक्स्ट पैरा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी राइटिंग चलती है। तो आई जस्ट टेक वन वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस, नहीं तो और मैं क्वेश्चंस एंड में ले लूंगी, अभी मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड के बेसिक प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं एंड में आ रही, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आप बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन में बैठी हूँ, तो आई कैन टेक योर क्वेश्चन 2 घंटे, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैं अभी ब्रीफली ले लेती हूँ, एक ज्योत्सना ने हाथ उठाए थे और एक महेश जी ने हाथ उठाए थे। ज्योत्सना प्लीज गो अहेड। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ मैम, मेरा जो आपने फर्स्ट बोला था रैशनल एंड सेकंड इज द थ्योरेटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, राइट जी।
तो मैम मेरा ये था कि सीक्वेंस ऑलवेज यही रहता है या फिर जैसे कि हमने, हाँ जी, हाँ, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये ना जो थीसिस होती है ना, वो जी। आपकी ऐसे। अपनी पेंटिंग होती है। तो दिस इज Okay. द लार्जली द एस्टैब्लिश्ड the most commonly formats. गलत है ये। अगर आप कहें कि इसमें आपने हाथ थोड़ा को सा यूं ऊपर नीचे कर मोड़ना दिया हो भी तो वो आपकी पड़ता है। पेंटिंग है, ये वो देखो आपकी मेरे choice हाथ मोड़े हुए हैं। बट Okay, ma'am. ये थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है। ये सब मैंने एपीए की, ये मेरी बहुत ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड पीपीटी मुट्ठी है। मैं बना आज 10-15 साल से यही पढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने एपीए की वेबसाइट्स, जो एस्टैब्लिश जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स, वहां से उठाया हुआ है। तो But थोड़ा ma'am, ऊपर नीचे हाँ मैम, थोड़ा सा मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी ये रिसर्चेस हो चुकी है, ये इतना वर्क किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो चुका है, तो वी कॉल दिस द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। शायद मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नहीं, ये पर हम लिटरेचर रिव्यू में भी हम आ रहे हैं। वो सिर्फ आप देखिए इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आप एक कह रहे हैं कि भाई एक टैब मॉडल था और अब उसको एडजस्ट करने की जरूरत है। वेरी ब्रीफली, बिकॉज रिमेंबर ये आपकी सिर्फ 10% ऑफ योर थीसिस है। लिटरेचर रिव्यू एंड मेथोडोलॉजी 30% है। तो ये बस आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें। जी अब इसमें आप डिटेल में नहीं जा रहे। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अगर हम रेशनल पे आते हैं, रेशनल मीन्स कि व्हाई डू वी डू दिस रिसर्च वर्क। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में इतना हो चुका है, अब हम ये करना चाहते हैं। रेशनल मीन्स कि इसकी नीड क्यों है रिसर्च की। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो तो अगर लास्ट हम पैरा जो है आपका समरी, जो मैंने आपको बोला, वो उसी पे रैशनल पे ये अटेंड करता है। और Okay. शुरू आपका कि ये रिसर्च जरूरी क्यों है। ओके, तो पूरी स्टार्टिंग एक जरूर। कहानी की तरफ। ओके 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 मैम। सी, अब मैंने बोला ना ये आपकी कहानी है। मैं ओके आपको मैम। ब्रॉड गाइडलाइंस दे रही हूँ। आप इस कहानी को अपने हिसाब से बना सकते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन रिसर्च। भाई ये मेरी कहानी है ना, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट आई फील इज इम्पोर्टेंट। तो मेरी कहानी है ना। वी आर जस्ट गिविंग यू ब्रॉड गाइडलाइंस। दीज आर एज फ्लेक्सिबल एज योर ओन। कई बार गाइड्स की भी अपनी अपनी क्या होता है ना कि जैसे एक सिंपल दाल होती है, तो कहीं वो टमाटर डाल देते हैं, कहीं पे प्याज डाल देते हैं, कहीं पे ये कहीं वो। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट as long as you're following the basic guideline कि पहले आपको बॉईल करना पड़ेगा और फिर तड़का मारना पड़ेगा। कई लोग पहले तड़का मार के बॉईल कर देंगे, तो बात वही है। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। मैं वो है ऐसा करते हैं कि मैं ऑलरेडी हाफ टाइम टच कर रही हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं हुई। तो लेट मी जस्ट फिनिश इट। और फिर जितने क्वेश्चन होंगे, आज मैं रात के 2 बजे तक भी आंसर करने वाली हूँ। आपके 2 बजे, मेरे अभी 5 घंटे। तो आप रेडी टू आंसर। मैं जिससे एक पढ़ा लूँ और फिर जिसको मुझसे क्वेश्चंस पूछने होंगे अब रह जाएगा। दैट विल बी अ गुड इनफ। आई थिंक दैट विल बी फेयर टू। तो मैं ओके ओके मैम। है ना, मेक सेंस। उसके बाद आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। राइट, ये वही आर्ग्यूमेंट हम जो क्लियर कर रहे थे कि आप ये आपकी रैशनल, दिस इज दैट व्हाट वी वर जस्ट टॉकिंग। अब आपका आया लिटरेचर रिव्यू। जो मैंने आपसे कहा हिस्टोरिकल, सबसे पहले तुम दोनों यहाँ आप क्यों अपना आए हो तीनों? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करिए कि आखिर ये मैस्लोज़ थ्योरी ऐसे स्टार्ट डिस्टर्ब करने और से उसका को क्या रहा। लिटरेचर रिव्यू सब अलग अलग करते हैं। कोई लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लेते हैं, कोई लॉजिकल ऑर्डर में कर लेते हैं, कोई वेरिएबल ऑर्डर में कर लेते हैं। ये आपकी और आपकी गाइड के बीच में मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस दे रही हूँ। यू कैन फॉलो एनी मॉडल, क्या कर दिया? बट लार्जली द स्ट्रक्चर इज कि एक तो आपको पानी ज्यादा 100% पिला आपको दिया होगा। जो सेमिनल पेपर है उससे लेकर आज तक क्या इम्पोर्टेंट काम हुआ, ये तो आपको बात करनी पड़ेगी। एक कहानी देनी पड़ेगी कि टैम मॉडल था या मैस्लोज़ थ्योरी थी, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो की रिसर्च माइलस्टोन जिसे कहते हैं, की माइलस्टोन तो आपको डिस्कस करने पड़ेगी। नंबर 1। फिर मैंने आजकल जैसे मैं पब्लिशिंग करती हूँ तो 100% वो कहते हैं कि लास्ट 3 इयर्स की आप रिसर्च डालिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है आपने सेमिनल पेपर्स ट्रेस कर दिए, तो आखिरी 3 साल की वो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू जरूर मांगते हैं और डिटेल में मांगते हैं।
तो जब आप गूगल सर्च करें तो आप अपने लेफ्ट साइड पे जो आप साल जो होते हैं उसमें आखिरी 3 साल के आप ले लें। फिर आपकी थ्योरी रिसर्च स्पेसिफिक टू टॉपिक, थीसिस, क्रिटिक। अच्छा हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, जब भी आप कई बार ऐसा होता है कि हमें मेथड नहीं पता होता, मैं भी ऐसी सीखी हूँ। हम सोचते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इज माय लिटरेचर रिव्यू, एक्चुअली नो। तो ऐसा करें फिर एब्स्ट्रैक्ट उठाएं, कट कॉपी पेस्ट करें लिटरेचर रिव्यू। नो 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 नो, लिटरेचर रिव्यू मीन्स दैट एक्स वाई जेड ने ये काम किया है, गुड, बट वो काम मेरी रिसर्च से कैसे कनेक्टेड है इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट इज नॉट अबाउट कि किसी ने क्या काम किया है, इट इज अबाउट कि वो काम मेरे काम से कैसे कनेक्टेड है एंड हाउ इज इट कनेक्टेड, दैट critique, and that is why I've used the word critique there. That linking is very important in the literature review. Just don't cut, copy, paste your abstracts that you will use. And of course आपको कोई ना कोई एक ऑर्डर, चाहे आप उसको क्रोनोलॉजिकल ले लें, चाहे वेरिएबल की हिस्ट्री ले लें, आप जो भी करें इट विल हैव टू बी लाइक आपने मोती बहुत सारे लिए और फिर एक माला में डाले। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये देखिए, अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते क्यों हैं, हम एक तार बांधते हैं कि भाई यहाँ तक ये काम हुआ था और अब हम ये तार यहाँ से लेके जा रहे हैं। देयर हैज टू बी अ लॉजिकल। उसके बाद व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, आज यहाँ तक ये काम हुआ था, व्हाट नीड्स टू बी डन। वेरिएबल्स आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर रिव्यू से मिलेंगे कि आखिर ये स्टडी हुई थी, उससे ये वाले वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो भी आप अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे जो भी हो, सैलरी हो, जो भी, वो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन हुए, किसने डिफाइन किए, क्या उसमें क्या उन्होंने क्या हिस्ट्री थी, वो वेरिएबल की आपको मैपिंग ज़रूर करनी पड़ेगी कि आखिर मोटिवेशन का मतलब ही क्या है, उसको कैसे स्टडी किया गया, कैसे इस्टेब्लिश किया गया। जैसे मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पढ़ती हूँ, तो टेक्नोलॉजी क्या थी, अडॉप्शन का मतलब क्या है, वो लोग खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या है, तो वो सब वेरिएबल्स, उसी से आपको आपके वेरिएबल्स मिलेंगे और आपको लिखना पड़ेगा कि आपने ये वेरिएबल किस स्टडी से लिया है। फिर आपने नया ऑफ कोर्स एंड कॉन्टेक्स्ट तो हम अभी बात कर ही चुके हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू दैट स्टडी, वो आपको लिटरेचर रिव्यू से आएगा। और ओरिजिन से स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वही आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपके कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई एट ऑल, तो उसे सेमिनल पेपर्स कहते हैं। वो आपके जैसे ही आप गूगल सर्च में डालेंगे ऊपर हज़ारों साइटेशंस होंगी, तो आप समझ जाइएगा वो आपके सेमिनल पेपर्स हैं। तो वो आपके होता है ना, जैसे बिल्कुल फाउंडेशन पेपर्स हैं। और मेन डेटा कलेक्शन टूल्स क्या हैं, अगेन जब आप मेथडोलॉजी, आजकल जो पेपर्स आप लिख रहे हैं हम लोग अच्छे जर्नल्स में, उसमें आपने क्या मेथड लिया है वो भी आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि क्यों आपने ये वाला लिया। आपने अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी ले रहे हैं तो वो भी आप लिखेंगे कि भाई रैंडम सैम्पलिंग इन स्टडीज़ में बहुत यूजफुल होती है, इसलिए हम रैंडम ले रहे हैं। लेकिन नीचे लिखा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो कैसे है और हाउ आर यू एस्टैब्लिशिंग इट इन द बॉडी ऑफ द रिसर्च, जो मैंने अभी बताया। ओके, लेट्स सी। तो विच बॉडीज ऑफ लिटरेचर लॉजिकली ऑर्गेनाइज, जो मैंने अभी लाल में जो किया हुआ है वो, और गैप्स, डिबेट्स, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी स्टडी फिट हो रही है, तो एक पजल है और मेरी स्टडी यहाँ फिट हो जाएगी, यहाँ तक काम हुआ है, इसके आगे मेरा काम होगा। दैट लॉजिक हैज टू बी वेरी क्लियर कि आपने क्या करा है। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ अ गुड रिसर्च। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझ लिया, अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क की। ये क्या होते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल्स वर्कआउट कर लिए कि अब हम ये वेरिएबल्स करेंगे, और हम एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाते हैं कि सैलरी होगी, क्रैश फैसिलिटीज़ होंगी, इंसेंटिव्स होंगे और एसी होगा, और ये सब वेरिएबल्स इम्पैक्ट करेंगे हमारे एंड रिजल्ट को, विच इज मोटिवेशन। और एक हम हाइपोथेसाइज करेंगे
हाइपोथाइज कि इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे मोटिवेशन में। हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि सैलरी बढ़ा देते हैं तो मोटिवेशन बढ़ जाता है, एसी कम कर देते हैं तो इस तरह की हमारी फिर कई सारी हाइपोथेसिस बन जाएंगे। आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं ऑफ प्रूविंग और डिसप्रूविंग। आई एम नॉट गोइंग देयर, डॉक्टर कृतिका विल डू इट टुमारो। बट आपके ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आप एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल यानी एक डायग्राम टाइप का कि ये वेरिएबल्स हैं और ये हमारे एंड रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और उसको साइड के कुछ है कि भाई मेरा वर्क प्लेस मेरे घर से नज़दीक है इसलिए वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, पर उसका भी इम्पैक्ट है एंड सो ऑन। आप एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं और फिर आप मेथडोलॉजी में उसको स्टार्ट प्रूविंग और डिसप्रूविंग। तो कुछ आपके हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती हैं और वो एंड में आपका रिजल्ट बन जाता है, और कुछ आपकी डिसप्रूव हो जाती हैं और वो वेरिएबल्स हटा दिए जाते हैं कि नहीं इनका कोई इम्पैक्ट नहीं। सो इफ यू लुक एट दिस, a conceptual framework is a visual or one that explains either graphically or narratively the main things to be studied, the key factors, concepts or variables, जो भी आप कहें, तभी इसे conceptual framework कहते हैं। And presume relationships amongst them, कि भाई सैलरी से बढ़ रहा है, क्रश से बढ़ रहा है, एसी से घट रहा है एंड सो ऑन, whatever relationships you are presuming, तभी hypothesis कहते हैं। और उसके बाद क्या ये प्रूफ और प्रूफ करेंगे वो आपका बाद में आपका वो दैट विल बी द रिजल्ट दैट यू विल डू। सो दिस इज देन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया लिटरेचर रिव्यू में और उसी से आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आया। अब आपका फ्रेमवर्क आ गया, अब आप इसमें से कुछ प्रूफ कर देंगे और कुछ नहीं डिस्प्रूव कर देंगे। ये सब आई नो थोड़ा शुरू में जब आप सुनते हैं तो ये करें ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्या है, पर जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो ये बहुत ही ABCD लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है वेरिएबल्स तो आए हैं और वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स तो ही हैं और वेरिएबल्स हमें स्टडी से मिल ही रहे हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो लिटरेचर रिव्यू हो रहा है और उससे फिर हमारी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन रहा है। सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो हमने बात करी। I've already done that and this is the conceptual. So I've given you both. कि कभी आप ये आपको पूरी की पूरी ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। I will give you a PDF. आप आराम से पढ़ लीजिएगा। I will also share my email etc. at the end of the presentation. Please feel free to reach out to me. मैं एक हार्डकोर टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आप मुझसे 100 बार 100 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मुझे ये जरूरी तो नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ। We will have a discussion. हो सकता है कि आपको जो मुझको ज़्यादा पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा एंड वी विल हैव अ डिस्कशन एंड वी विल वर्क दैट आउट। सो अगर आप टास्क देखें, अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द मॉडल इज यूज्ड शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड वेरिएबल्स टू बी स्टडीड। सो लिटरेचर रिव्यू का एक बेसिक आइडिया कि हम लोग उसमें क्या होता है, ये सब यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन, सो डोंट वरी ऑन दैट। ये सब मैंने यही सब अभी करा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लिटरेचर रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लिटरेचर रिव्यू। आप जो यूज करेंगे यू विल हैव टू साइट कि आप ये यूज क्यों कर रहे हैं, किस स्टडी में ये ऐसा यूज हुआ था, हेंस ये इंपॉर्टेंट है कैसे यूज। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी, procedures, population, sample size आपने कैसे लिया, उसमें क्या फॉर्मूला लगा या क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, पायलट स्टडी जरूर करिएगा। नॉट ओनली इज इट इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स इन योर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सर्वे कर रहे थे, अब वो करीब बहुत कॉम्प्लेक्स लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमें वो समझ में आया कि पायलट स्टडी में हमने थोड़ा सा हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और लोग फिनिश ही नहीं कर रहे हैं, वो आधे में सोच छोड़ के भाग रहे हैं, तो हमारी स्टडी कभी खत्म ही नहीं होती। एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू विल यूज एंड ऑफ कोर्स इज समरी। अब अगर ये आपको दिख रहा है, थोड़ा फाइन प्रिंट है, आपको मिल जाएगा, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। इट tells you about how you will, the first one is how the chapter is organized, gives you the idea of the sample and sampling strategy,
आप क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव यूज़ करेंगे, फिर आपका कौन सी क्या डेमोग्राफिक होगी, क्या थ्योरेटिकल होगी, आपका क्या डिज़ाइन होगा, क्या डेटा कलेक्शन के मेथड्स होंगे, आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड कर रहे हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यू विल हैव टू गिव साइटेशंस देयर। कौन सी डेटा एनालिसिस के टूल्स आप यूज़ करेंगे एंड व्हाई, कि भाई इस स्टडी में ये यूज़ किया गया था और उसके रिजल्ट सही आए थे इसलिए मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आजकल वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश के यू आर नॉट बीइंग फंडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रूव अ सर्टेन थिंग। जैसे आप दवाई जो है कोई आपको फार्मा कंपनी कोई स्पॉन्सर कर रही है, सो ऑन, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट्स इट। एक एक करके चलते हैं, वो तो एक ओवरव्यू था मेथोडोलॉजी। तो ओवरऑल डिज़ाइन अजम्पशंस, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और क्यों। मैंने आपसे पहले भी बोला, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं एक टेबल बना लीजिए, ये सेमिनल पेपर है, इसके ये वेरिएबल्स हैं और ये मेथोडोलॉजी उसने यूज़ करी थी। जब ये आप टेबल बना लेंगे, आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ये कर देते हैं, तब आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आप उसी टेबल को रेफर करेंगे और कहेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ऑथर ने ये वाला वेरिएबल के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया था इसलिए मैं भी यूज़ करूँ। You cannot just randomly say यार मेरा मन कर रहा है ये वाला यूज करने। You will have to establish it by literature. फिर आपके डेटा कलेक्शन, आपका सैम्पल साइज, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ सैम्पल साइज, और अप्रोक्सीमेशन के भी फॉर्मूले होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा एज पर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। तो वो भी आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे होंगे तो व्हाट आर द सैम्पल साइज बीइंग यूज्ड बाय दोज ऑथर्स, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना सैम्पल साइज की जरूरत है। डेटा एनालिसिस, अगेन which tools you are using and why। आजकल बड़ा सरप्राइजिंग है कि पहले तो हमारे ज़माने में कहते थे नहीं जब तक क्वांटिटेटिव नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आजकल दे आर सेइंग क्वांटिटेटिव तो हो क्वालिटेटिव भी हो, सो दे आर वांटिंग अ मिक्स्ड अप्रोच। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि आप क्योंकि थीसिस कर रहे हो कि एकदम उतना भी यू डोंट बाइट के आप खा ना पाओ, तो वट एवर मेथड्स और एनालिसिस दैट यू आर यूजिंग, ये रह सकता है। आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर चल रहा है, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने मतलब मेरे खुद के रिसर्च स्कॉलर की अभी वाइवा हो रहा था और उसको वाइवा वाले ने पकड़ लिया, तो मैं सोच रही थी कि देखो मैंने सबको पढ़ा दिया, इसको नहीं पढ़ा पाई। देखिए बिल्कुल मैथमेटिक्स है। आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बोला, उससे आपने 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाए, 4-5, उससे ऊपर नहीं। One line always starting with 2 to do this, to find out research motivation to this, to this, to this, 4 या 5। उस ऑब्जेक्टिव से, हर ऑब्जेक्टिव से 3 या 4 क्वेश्चंस आए, रिसर्च क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चनर वाले होते हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव, हर से रिसर्च क्वेश्चंस। उन रिसर्च क्वेश्चन से आपका डेटा आया, आपने डेटा एनालाइज करा और फिर आपका रिजल्ट आया। बिल्कुल मैथ जैसे। आप जब वाइवा के लिए जाएं तो एक साइड अपना ऑब्जेक्टिव रखें, उसका रिजल्ट लिखें और उसकी फाइंडिंग लिखें। बिल्कुल 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। ये मेरे भी स्कॉलर के वाइवा में उसको पीट रहे थे, तो कि भाई ये तुम लोग क्या ऑब्जेक्टिव दिखाओ और फाइंडिंग दिखाओ। सिंपल मैथ्स है, ये आपको अपनी मैपिंग लेके जानी पड़ेगी। 99% वाइवा वाले यही पूछते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव दिखा दो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना सुनने का, ऑब्जेक्टिव दिखाओ, फाइंडिंग दिखाओ, बाकी ठीक है बाद में देख लेंगे। सो व्हाट वर द फाइंडिंग्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड व्हाट एविडेंस। कुछ जरूरी नहीं है आपकी सारी हाइपोथेसिस प्रूव ही हो जाए, कुछ नहीं हो सकता है ना भी प्रूव हो। सो दोज थिंग्स आर देन इम्पोर्टेंट। प्लीज डू इट, मैप इट लाइक अ प्रॉपर मैप। अच्छा, फिर अगर हम लास्ट में आते हैं कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। आप कंक्लूजन में एक समरी देते हैं फाइंडिंग्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसको लिंक करते हैं कि आपने रैशनल में जो करा था आपका वो अब क्या हुआ, क्या आपने प्रूव किया, आपकी जो फाइंडिंग्स आई क्या वो रैशनल से मैच करी, डज इट ऐड टू द बॉडी ऑफ वर्क व्हिच इज ऑलरेडी बी डन, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। सो आप देखिए
what is the impact, what are the implications. तो implication number 1, जो आपने लिटरेचर रिव्यू करा था क्या उसमें एडिशन हुआ, XYZ ABC तक पढ़ा गया था, क्या आपने DEF प्रोवाइड किया, सबसे पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा इम्प्लीकेशन सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशन हुआ, आपकी रिसर्च से क्या किसी की मोटिवेशन ज़्यादा समझ में आ गया तो HR प्रैक्टिसेस बेटर हो गई, क्या आपकी किसी मॉडल से अब टेक्निक ट्रांसफर हो गई तो अब पैसा ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो उसकी सोसाइटी पे उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ, आइदर अ सोसाइटल इम्पैक्ट और बिजनेस। जैसे मैं मैनेजमेंट की टीचर हूँ तो क्या उससे हम कोई बिजनेस बेटर वी कैन वी फाइंड आउट सम वे ऑफ डूइंग बेटर बिजनेस। और फिर अब 100% आपकी स्टडी पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी कि भाई मैंने सिर्फ दिल्ली NCR में कन्वीनियंस सैम्पलिंग करी थी, हो सकता है कि डेटा बायस हो। मैंने इसको 3 साल पढ़ा था और बीच में 2 साल कोविड था विच इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, तो हो सकता है डेटा वुड हैव बीन इम्पैक्टेड, हो सकता है मोटिवेशन वुड हैव बीन मोर कि आप घर रहना इज अ मोटिवेशन। सो दोज थिंग्स यू हैव टू ब्रिंग आउट इन योर conclusions and your implications. That's very very important, and that also gives you then path of future researches. और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो आपने एक प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन में क्रिएट करी थी, क्या आपका कंक्लूजन उसका आंसर दे रहा है, जो आपने रैशनल और जो इम्पोर्टेंस क्रिएट करी थी क्या वो इम्पोर्टेंस प्रूव हो गई और क्या आपने उसका आंसर दे दिया। सो दोज थिंग्स, ये एक, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप ही को अपनी थीसिस पता है, तो जब आप लिख लें तो आप एक मिनट आंख बंद करके सोचें कि जो मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था क्या आखिरी में मैंने क्या उसका आंसर दिया, अगर वो आंसर दे दिया आपकी थीसिस इज गुड टू गो। भाई इम्प्लीकेशन देखिए, सबसे पहले थ्योरी बिल्डिंग, scholarly understanding of the field and future research, future researches and business। वैसे मैं business teacher हूँ, 100% business हम केस स्टडीज लगाते हैं कि क्या इससे कोई बिजनेस में फायदा हो। सो implications, community in the real world, policy development। तो फॉर एग्जांपल मेरे एक स्कॉलर ने जो पराली जलती है उस पर काम किया, तो फिर then he went and submitted it to the Ministry of the Environment। उससे क्या कोई पॉलिसी से कोई फायदा हुई, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से कोई फायदा हुई, एकेडमिक प्रैक्टिस, सोसाइटल एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो ये सब चीज़ें आपके इम्प्लीकेशंस में आनी चाहिए। हमने रिसर्च करी है तो उसका फायदा हो रहा है किसी को कि जस्ट अ रैंडम थिंग, ये बहुत तो वही क्या हमारी थ्योरी उसको आगे लेके जा रही है, वही चीज़। कंक्लूजन, वही जो मैंने भी बोला, प्रोसीजर्स, रिकमेंडेशंस एंड सो ऑन। ये मैंने भी इसको कहीं से उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप कोई भी एक पेपर लिख रहे हो आप इसको टिक मार्क कर लो, अगर ये सारे आपके रेडी हैं तो समझ लीजिए कि आपने सही लिखा है। तो ये एक बिल्कुल चेकलिस्ट दी हुई है कि आप ये ज़रूर आप कर लें। दिस इज जस्ट फॉर यू that you can use it when you're writing, and this is how to write a research, to और डिटेल में। ये सब चेकलिस्ट है, इसको पढ़िएगा, बड़ी मजेदार है। तो you can see if you can tick mark all those if you're doing the very minor things which are given to you for you to check if you are actually being able to do it। कभी कभी हमारे पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये बड़ा वो मुझे कहीं मिला, ये सब चीज़ें मैंने ऐसी आउट ऑफ शेयर एक्सपीरियंस लिख दी कि क्या आपकी प्रॉब्लम सही से कोई, इज इट इम्पोर्टेंट इनफ टू बी एड्रेस्ड, क्या ये किसी नॉलेज को, वही मैंने कहा जैसे ABC तक करा हुआ है, क्या ये DEF प्रोवाइड करेगी, और क्या ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए। ये सब क्वेश्चंस रिव्यूअर्स कई बार देखते हैं, just to give you a little bit of an idea। ये सब अब correlate to ये सब repetitions हैं of all that I have talked about, and then I will last 5-7 minutes I'll just take questions। ये पढ़िएगा, मैं आपको पूरा का पूरा दे दूँगी। हाँ, ये मैं इस स्लाइड की वेट कर रही थी। ये आपका एक बिल्कुल
बहुत ही बढ़िया समरी बनी हुई है of how you should do research, what should be the format of research. So abstract is a mini version of paper. Introduction provides rationale. Methods provides what was done, experiment, model, case study. Results provide the data, facts, what you found, calculated, discovered, observed. Discussion shows the relationships among the facts, put your results in context of previous research, and conclusions meaning summarize your principal findings. तो ये आप जरूर, और एक चीज और है, आई एम श्योर आपको पता होगा, बहुत बेसिक होता है कि आपकी पूरी रिसर्च थर्ड पर्सन में, यानी रिसर्चर्स फाउंड, आई मी नहीं यूज किया जाता है, हमेशा थर्ड पर्सन में और पास्ट टेंस में लिखी जाती है, एक्सेप्ट कंक्लूजन जहाँ पर आपको दूसरे टेंस यूज करने पड़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी टर्म्स आप यूज करेंगे. इट्स अ वेरी नाइस समरी. ये सब मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है कि आपको यूजफुल होगा. ये मैं इसकी वेट कर रही थी, बहुत ब्यूटीफुल है. इंट्रोडक्शन से आप एक क्रिस्टलाइज करते हैं अपने बड़े रिसर्च क्वेश्चन को एक छोटे से स्टडी में, उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ते हैं और फिर डिस्कशन में आप उसको बड़ा कर देते हैं कि ये मेरी स्टडी है, इसका ये इम्पैक्ट होगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड विजुअल ऑफ व्हाट and how your research study should be kind of written. That is then becomes very important. तो ये मुझे बड़ा अच्छा एक लगता है, तो मैंने ये आप लोग के लिए लाई. और and then I'll take questions. Just about 5 minutes left. I think ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब बड़ी है. And let me now take the questions. Okay, please let me ask me all questions. I'm open to all debate. हाँ जी, मुकेश जी. मुकेश जी, I think वो गलती से उन्होंने हाथ उठा दिया. Anybody else? Please ask me questions. मैंने पर्पसली आखिरी 5-10 मिनट क्वेश्चंस के लिए रखे. हेलो, हाँ जी, मुकेश कुमार जी, पूछिए ना, क्वेश्चन तो पूछिए. अच्छा, वासुमती पांडा जी. मुझे आवाज नहीं आ रही, आप पूछ रहे हैं ना. ज्योत्सना, कोई भी पूछ ले यार, जस्ट आस्क क्वेश्चंस. हेलो. हाँ, यस मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट आ रही है. पूछिए. हाँ मैम, जैसे आपने डिस्क्राइब करा था कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमें हमारे हाइपोथेसिस मेकिंग में या हमारे एनालिसिस में हमें हेल्प करेंगे इन फ्यूचर. तो मैम वो कुछ रेफरेंस आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर? आजकल जैसे PLS वगैरह है. कल डॉक्टर कृतिका आ रही है, मेरी खुद की स्कॉलर है, और वो आजकल रीसेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है. तो कल आपको समझाएंगी, आप उनकी क्लास जरूर बिल्कुल मिस मत करिए. मेरी खुद की स्कॉलर है. ओके मैम, वेरी प्राउड ऑफ. मैं थोड़ी ओल्ड फैशन, जैसे होता है ना, माएँ पुरानी हो जाती हैं और फिर बच्चे नए हो जाते हैं. नहीं मैम, यू आर द फाउंडेशन. यू आर द फाउंडेशन ऑफ यंग जनरेशन मैम. So please do not miss her class. I'm very very proud of her. So please, she will give you the latest software. Don't miss her class. Okay ma'am. Please go ahead. Okay, thank you so much, ma'am. So I would like to invite all. एक दो क्वेश्चन हो तो we can take it. अभी हमारे पास है 2-4 मिनट और मैं कोई जल्दी नहीं. पायलट स्टडी इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बार आप रन करेंगे तो कई बार आपको पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन इससे वर्डेड नहीं है, हमारे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो समझ नहीं आ रहे हैं. हम ही एक स्टडी अभी कर रहे हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि लोग आधे आधे पे छोड़ के भाग रहे हैं, तो उससे हमारी स्टडी खराब हो जाएगी.
प्लीज डू अ पायलट स्टडी। वो एक छोटे 10-20 लोगों 30 लोगों पे भी चल जाती है। प्लीज डू अ पायलट स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो पार्ट ऑफ आवर रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको मेंशन करना था। Anyone else? Ask the questions. Okay, I think there is no any query right now, ma'am. तो मैम जब क्वेश्चंस ना हो तो या तो टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है या बहुत खराब पढ़ाया है, इसके दो इंडिकेटर Same thing, ma'am. Yesterday sir told कि या तो बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, एंड मैं सेकंड ऑप्शन को नहीं करूँगी कि ये है ही नहीं। आपने इतनी अच्छे से मैम सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रीफली एकदम समझाई हैं, एंड मैम रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार पीपीटी हमें शेयर करें। हाँ, मेरे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पढ़ी है तो शेयर हो नहीं सकती। मेरे पास इसी की पीडीएफ है, यस, तो मैं आपको मुझे मेल कर दीजिएगा। श्योर। मैं इसी की पीडीएफ मुझे पता है कि और एक अच्छा टीचर वो होता है जो यू नो आगे वालों को समझा के जाए। अगर मैं अपनी नॉलेज आगे ना बांटूं तो फिर कोई फायदा नहीं जी। तो मैंने इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बनवा के रखी है। आप मुझे एक मेल कर दीजिएगा, रिमेंबर है, श्योर मैं मैम, उसी पे रिप्लाई करके आपको इसकी पीडीएफ भेज दूँगी। श्योर मैम, श्योर। तो सो थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा आपका सेशन रहा, एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत लोग हैं अभी एंड में ज्वाइन किए हैं, आई थिंक उन्होंने सिर्फ अपने आप अटेंडेंस दी है। स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ये सेशन सिर्फ अपनी प्रेजेंस लगाने के लिए नहीं है, ये हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग और अच्छा सीखें और जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे, आगे जाता रहे। और प्लीज़ आप टाइम से ज्वाइन करें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू ऑल, My pleasure. थैंक यू आप मुझे वो भेज दें, जी। ईमेल भेज दें, मैं आपके साथ पीडीएफ